Hi 7th class. Today we will revise again this chapter for the periodic second, and the chapter is Understanding Media. You know very well what is media because you have already studied about this chapter and you have also done the exercise and question answer, so it is very easy to explain that what is media. So newspaper, radio, TV, magazine, the internet, films, letters, documentaries, posters, emails, chatting, public meetings are some of the medium of communication. Okay, these are the I already told you the examples, and these are the mediums of communication. So first one is कि what is the communication? The communication है क्या? Communication है the act of sharing or exchanging. What sharing or exchanging? Feelings, views and ideas. Okay, कि हम एक दूसरे को अपनी चीज़ें समझाते हैं, चाहे वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे व्यूज़ होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, और उनको समझाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो चीज़ें मीडिया में आएंगी। और जब उनको हम अपने विचारों को समझाते हैं या उनकी बातों को हम जो समझते हैं वो कम्युनिकेशन में आती हैं। ओके, और कम्युनिकेशन को हम किस तरह से शो करते हैं, वो हमारी उस बात को मीडिया बता रहा है। So when communication is undertaken on a one-to-one basis in the form of letters, telephone, email, etc. So ये क्या होगा? It is the term as a personal communication. And when the communication is between many, जब बहुतों के बीच में एक साथ में होता है communication, वो बोला जाएगा mass communication. समझ गए इस बात को? इसका मतलब है एक के बाद एक के बाद एक कम्युनिकेशन के जरिए को पहुंचाया जब जाता है तो वो तो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन में होएगा, यानी कि 1-to-1 बेसिस। और जब ये बिटवीन मैनी means when the communication is between many, so it is called mass media. So together these are collectively called media. Got it? Also here is given some points जो कि हमें पढ़ने चाहिए, और इससे हमें पूरे चैप्टर्स का पता चल जाएगा कि हमारे चैप्टर्स में मेन चीज़ें क्या दी गई हैं। सो मीडिया रेफर्स टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया किसको रेफर्स करता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को। और ये कम्युनिकेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। गॉट इट? And also here is given the radio, TV and internet are the electronic media. These are the example of what? Example of electronic media. And newspaper, magazine and journals are the example of print media. It means our media also classified into two types. First one is print media and the second one is electronic media. Got it? The next point, what describe here? Mass media reaches out to a large number of people. Got it? And the media earns its revenue through advertisements. By the large media is interdependent in most democracies, yet governments could impose censorship on for a bigger cause. अब इस वर्ड को भी आप जानते हैं कि सेंसरशिप क्या होती है। जब किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो और हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस होती है, हार्मफुल होती है, तो गवर्नमेंट उसको रोकने पर बैन लगा देती है। ओके, या उसको मीन्स लोगों के पास जाने से उसको रोकती है, उस पर बैन लगा देती है, तो इसको सेंसरशिप के नाम से जाना गया है। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज कि मीडिया हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन एंड
इन टेकिंग डिसीजंस। अब मीडिया क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है उसकी इंफॉर्मेशन को उनकी जानकारी सभी के पास पहुंचाती है और सभी ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं कि क्या पॉलिसीज़ और क्या वेलफेयर वर्क हमारे लिए हो रहे हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं, बाद में उन चीज़ों को जानते हैं और अपना ओपिनियन भी रखते हैं, और ओपिनियन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर होता है जिसमें सभी लोग अपनी एक मत और एक राय भी देते हैं। सो thus it must remain interdependent in a democracy. So and it should render a fair and balanced report without any prejudices. It means कि जो मीडिया रिपोर्ट पेश करती है वो बिल्कुल फेयर होती है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती है। लोगों के पास उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। ओके, and it is important that the people themselves should critically evaluate media reports before arriving at any conclusion. और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि जो हम न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं किसी भी कंक्लूज़न पर जाने से पहले या उसका जजमेंट करने से पहले हमें उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, सोच समझना चाहिए कि वाकई में ये चीज़ है या नहीं है। ओके, ऑल्सो द सम पॉइंट्स ऑल्सो गिवन हेयर। चलो हम इनको भी रीड करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से आसानी से इस चैप्टर को कर पाएंगे। सो द मीन्स बाय विच द लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट आर कॉल्ड मीडिया. Okay, and media such as radio, TV, newspaper which can reach a very large number of people at the same time are called mass media. Here is a given very large number of the people when at the same time. Okay, the media play an important role in the working of a democracy by कैसे informing people about the government activities and by making people's opinion known to others. The main functions of the media are to give information. ये मेन फंक्शन है, ये मेन काम है मीडिया का कि सबके पास इंफॉर्मेशन देना, to allow discussion and debates and to shape public opinion. ये भी यहाँ पे मेन फंक्शन है ये मीडिया का. ओके, द नेक्स्ट वन, यूजुअली द मीडिया फॉलो अ कोड ऑफ एथिक्स. एथिक्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स स्टूडेंट्स? नाउ आई एम पुटिंग one questions in front of you. Who decides what is newsworthy or not? It is the media which plays a crucial role in deciding on the news worthiness of an issue. It sets the agenda on what to focus on and what not to focus on, कि हम किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं. It shapes public opinion and thoughts. It brings to light issue requiring our attention. Okay. So, in India, the media form their own codes of ethics. Such code seeks to ensure that the media present news correctly and fairly, respect people's privacy, protect and interests of the nation and the society, and correct errors and allow replies, avoid vulgarity and show caution while criticizing the actions of court. Okay, and our government uses the mass media to give information to the people, and the government has its own media units. The Ministry of Information and Broadcasting is responsible for
developing, regulating and sending out information. द मेन फंक्शन वो मीडिया का सिर्फ क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन. ओके, और वो डिफरेंट फील्ड्स में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो सभी के पास पहुंचाती हैं. ओके, एंड इन इंडिया गवर्नमेंट passed Right of Information Act, and when it is passed 2005. Okay, and it give the people access to information relating to public authorities. The act came into force in October 2005. Is it clear? एंड चलो हम अब नेक्स्ट अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं. एंड विच वन इज़ दिस चैप्टर? एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो. और यहाँ पर एडवर्टाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई है जिसको आप अच्छे से समझेंगे. वो क्या है? What you learned in this chapter? You learned advertisements are promoted through. किसके थ्रू आते हैं एडवर्टीजमेंट? हम किसके थ्रू हम देखते हैं? टीवी, रेडियो, रोड साइड होर्डिंग्स पर भी आपको लगे मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड एक्सेट्रा. सबसे पहले हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले, कि व्हाट इज़ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टाइजिंग मीन्स ड्रॉइंग पीपल्स अटेंशन. व्हाट? ड्रॉइंग पीपल अटेंशन. किसके लिए? टू गुड्स. ओके, कि अटेंशन, किसी की अटेंशन लेना, हासिल करना अपने सामान को बेचने के लिए. सर्विसेज और आइडियाज़. ओके, इट इज़ डन थ्रू वेरियस मीडियाज़. कहाँ कहाँ आप देखते हैं उसको, एड को? न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट. ओके, एंड advertising may be of various types. Broadly speaking, there are the two main types, commercial and social. इसको हम बाद में पढ़ते चलेंगे. Okay, now the second point is given. The basic purpose of advertising is to inform and persuade people to buy the products advertised. इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि लोगों के पास अपने बनाए हुए सामान की इंफॉर्मेशन देना, कि वो कैसे यूज़ होगा, उसका आपको कैसे यूज़ करना है, वो आपके बेनिफिट के लिए है या नहीं है, वो सारी की सारी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं, जो भी कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाती है उससे रिलेटेड. इज इट क्लियर? और एडवर्टीज़मेंट क्यों ज़रूरी है मीडिया के लिए? क्योंकि मीडिया को भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए उसको भी तो पैसों की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है. और उसको मनी कहाँ से मिलता है? देखो, एक मीडिया को बहुत ही अच्छे लेवल पर बनाए रखने के लिए उसमें बहुत सी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती हैं. और वो मॉडर्न टेक्निक्स तब हासिल हो सकती हैं, वो भी तो मनी से ही मिल सकती है ना. अगर मनी होगी तो और बेहतर से बेहतर चीज़ों का इन्वेंशन होता चला जाएगा और हमारे पास बहुत जल्दी से जल्दी, बहुत ही क्विक सेकंड्स में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाती है. और वो पैसा कहाँ से मिलता है? जो भी ऐड आते हैं, जो भी ऐड दिए जाते हैं, कहाँ पर? मीडिया में. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, जितने भी ऐड दिए जाते हैं वहाँ से किया गया पैसा या वहाँ से लिया गया पैसे से ही वो अपने को मेंटेन रख पाते हैं. Okay, so now next one is advertisement helps in creating brands or an image to the product and are associated with the brand values. Okay, next, advertisements by governments and NGOs issue social message for the betterment of the larger section of the society. देखो, मैंने आपको बताया था कि advertisement also classified into 3 types. First one is commercial ad, second one is political ad, third one is social ads. कमर्शियल में क्या है? चीज़ों को बेचने के लिए, उनमें से प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऐड दिए जाते हैं ताकि हम उनको देखें, अट्रैक्ट हो और जल्दी उनको ख़रीद कर लाएं. पॉलिटिकल ऐड होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है,
बहुजन समाज पार्टी है, वो अपनी पार्टी के जितने भी प्रोपेगेंडा होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं उनको ऐड के थ्रू, या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीडर्स होते हैं उनकी पार्टी के, उनको वो उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाती है। और सोशल ऐड होते हैं जो कि वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं, जितनी भी सोसाइटी में वेलफेयर के वर्क होते हैं। ओके, एंड सो नाउ नेक्स्ट वन, क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग एडवर्टीजमेंट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। बहुत महंगे होते हैं ये। ऑल कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड एडवर्टीजमेंट, हर कंपनी इनको अफोर्ड नहीं कर पाती। इन अ डेमोक्रेसी द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज़ टू बी क्रिटिकली इवेलुएटेड। गॉट इट। नाउ हियर इज़ ऑल्सो गिवन वन डायग्राम जो दिया गया है, पूरे चैप्टर्स को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। सो चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सो उसका पहले हम मतलब समझते हैं कि मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट्स आर क्रिएटिव एक्सप्रेशन विद अ पर्टिकुलर पर्पस, ओके, एंड स्पॉन्सर्ड मीडिया इज नोन एज एडवर्टीजमेंट. It aims at informing and persuading the audience and target group. किसी चीज़ को खरीदने के लिए लोगों को राजी करना. It tells us about features, price and availability of the product and service. ये हमें उस प्रोडक्ट के फीचर्स बताती है, उसका प्राइस बता देती है, ओके, उसकी अवेलेबिलिटी, कब तक वो सूटेबल है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी भी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू पता चल जाती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि मीन्स ऑफ मेथड्स क्या है एडवर्टीज़मेंट के। सो मीन्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट है, एक तो जर्नल, मैगजीन, रोड साइड, बिलियो बोर्ड्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, यहाँ बहुत से हमें ऐड देखने को मिलते हैं। एंड मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है, इंगेजिंग 5 सेंस ऑफ ह्यूमंस बीइंग सच एज साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल। नेक्स्ट, पर्पस क्या है एडवर्टीजमेंट का, टू इन्फॉर्म, जितना भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है हमें देना। जैसे कि पल्स पोलियो कैंपेन है, इज़ अ गुड एग्जाम्पल इन विच पीपल आर इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग डेट्स एंड वेन्यूज़ ऑफ सच कैंपेन्स। टू परsuade, किस चीज़ को राजी करना, किस चीज़ के बारे में। एडवर्टीजमेंट बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। दे परsuade यूथ टैलेंट टू द कंट्री टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्स। ओके, एंड ऑल्सो एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी कॉल्स इक्वालिटी बट एडवर्टीजमेंट सेम्स टू क्रिएट इनइक्वालिटी। डेमोक्रेसी तो इक्वालिटी शो करती है, एडवर्टीजमेंट इनइक्वालिटी। स्मॉल कंपनीज कैन नॉट स्पेंड मच ऑन एडवर्टाइजिंग, बहुत ज़्यादा पैसे ही खर्च नहीं कर सकते, सो देयरफॉर कैन नॉट कम्पीट विद बिग कॉर्पोरेट हाउसेज। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ऐड देती हैं, उनमें बहुत सारा पैसा वो लगा देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी कंपनीज होती हैं जो कि ये नहीं कर पाती हैं और वो पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इतने नहीं बिक पाते हैं। ओके, और यहाँ भी कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं वह। ओके, तो वो क्या है हम इसको देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग मीन्स ड्राइंग पीपल्स अटेंशन टू गुड सर्विस और आइडियाज़। आप ये नोट्स भी बना सकते हैं, आप अच्छे से इनको राइट भी कर सकते हैं एज यू विश, बट बेहतर होगा कि आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलें। Advertising serves advertisers by carrying their message to the people. It also benefits the people as it gives them information. Okay, it is a source of income for the media and advertisements and for the people who design and create advertisements. Now commercial जो advertising है उनका aimed होता है mainly at promoting the interest of the advisor, which is usually a business organization. Some common types of commercial advertising are कौन से, तो product advertising है which encourages people to buy various consumer products, and classified advertising which gives information about birth, deaths, marriage, jobs, houses available, service available and so on. Industrial advertising क्या है, which gives information to the technical people, and institutional advertising which builds a good image for the
advertiser. Got it? And social advertising, also called public services advertising, is done for the benefit of people, and it is done mainly by government. And advertisers should make sure that their advertisements do not make false claims, go against moral values, hurt people's feelings, promote violent or dangerous or illegal activities, or contain unfair remarks about others. And advertising promotes the belief, what belief? That all products and their users are not equal. Advertisement creates stereotypes, and those who do not fit into these stereotypes are shown as inferior. And advertisements give rise to a feeling of guilt among those who cannot afford to buy branded products for their loved ones. And advertising causes loss of sales to small manufacturer who cannot afford to advertise their products. नाउ दिस अब हमारे जो चैप्टर्स थे वो कौन कौन से चैप्टर्स, बोथ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, ये हमने इनकी रिवाइज किया है इनको. सो दीज आर कंप्लीटेड. आई थिंक यू गॉट इट. आप अच्छे से इनको दोबारा से पढ़ें और रिवाइज करें, और ताकि आप अच्छे से अपने पीरियोडिक सेकंड को दे पाएँ. गॉट इट? सो नाउ best of luck for your periodic second.